every year is growing from strength to strength. If I'm not wrong, the number of players from countries' participation this year has gone up as well. And it's great to see some of the local talent do so well. Mohammad Wasim, even last year he did really well. This year consistently he is doing well. I think the way Khuzaima bowled, that was outstanding. Another young kid who probably didn't get enough opportunity, I think, but could be a bright future star as a local player is D'Souza, the young player who just batted for that one ball today also and got that 4 as well. I have a feeling that seeing him bat, how he handles himself, I got a glimpse of him in one of the innings when he got 12-14. This goes to show he's a couple of seconds early on the ball. He gets into position really early. So I think he'll do really well. And you did mention D'Souza, but there are also other, especially some bowlers who played for the first time, caught a lot of attention, especially from you bunch of commentators. You talked about them. Any special bowler that you like? Well, we spoke about Khuzaima, the fast bowler. He picked up 4 wickets as a local talent. We all know Fazlul Farooqi now has become Wiley Fox. He's so smart. You give him the new ball, he swings the ball, and most important, to pick up wickets in the power play is probably one of the most difficult things to do for any fast bowler, because you have to try and pitch the ball up. You have to back your skills to swing the ball, and that's why you need to hit that sort of length. If you don't get the seam position right, it's a ball in the slot and it gets dispatched. But he swings it every single time and then probably comes and bowls at the most difficult time in any T20 innings. That's the death overs. The last couple of overs, he gets the slower balls right and he gets those Yorkers in. So if anybody watching around the world how a T20 bowler should be equipped with a skill to pick up wickets, probably you have a close look at Fazlul Farooqi. New ball picks up wickets with the lengths that he bowls. As the ball gets older, he's got the variations to bowl the slow balls, and of course, as a fast bowler, the Yorkers always come in handy. And generally, the level of competition, how have you seen it? Oh, incredible. Calling this incredible. The defending champions, My Emirates, unfortunately have been, batted out like Sharjah Warriors from that previous game yesterday. But Banton getting 200s in the competition, that's been phenomenal. Shai Hope, the way he's doing, and to me, the man for maybe season 3, 2025 has been Gulbuddin Naib with his big muscles. It's not just for show; he's putting in the hard work. I'll tell you that. Thanks to his batting prowess, that the Dubai Capitals are in the final. Absolutely. Question from the media, please. और सिर्फ 3 टीमें नहीं, अपने आप देखिए जो प्लेयर्स का चयन भी होता है उसके बारे में भी ये जितनी भी टीम्स हैं ना बहुत करीब से सोचती हैं. अब अगर मैं गलत नहीं हूँ, माय एमिरेट्स ने एक खिलाड़ी रखा था बेवन जेकब्स. 22 साल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उनको ILT20 में क्यों भेजा? अगले साल 2 साल में आप देखेंगे वो खिलाड़ी जो है ना वो IPL खेल रहा होगा, वो तैयार कर रहे हैं. क्योंकि हर टीम अपने स्काउट्स हर जगह भेजती है और यहाँ पे भी आके स्काउट्स देखते हैं, वो तैयारी रहती है. बेवन जेकब्स को यहाँ क्यों भेजा? क्योंकि आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेल रहे हैं और टॉप क्वालिटी कंपेटिटिव क्रिकेट है, तो इसलिए उनको भेजते हैं. तो वो 3 टीमें स्काउट्स है. आने वाले टाइम में देखिए स्तर कितना और बढ़ता चला जाएगा. जब मैं एंटरटेनमेंट कहता हूँ, सो एंटरटेनमेंट फ्रॉम अ स्पेक्टेटर व्यू पॉइंट की चौके और छक्के आपको देखने को मिल रहे हैं. सो शॉट सिलेक्शन आपका बेहतर हो जाता है. देन टू स्विच टू योर मोड, इट्स ऑल अबाउट बॉल सिलेक्शन. T20 में कई बार ही होता है कि यू टेक दैट हाफ हार्टेड चांस की विकेट्स इतनी अच्छी है, सी बॉल, हिट बॉल एंड हिट थ्रू द लाइन. अब बहुत सारी चीज़ों में आप लोग ये नहीं बात करते कि 50 ओवर की क्रिकेट में जब से वो रूल चेंज हुआ है ना कि 40 ओवर तक आपका 5वां खिलाड़ी भी वो 30 यार्ड के दायरे में होगा. दैट इज़ अलाउइंग यू और एनी टीम टू हिट मेनी मोर बाउंड्रीज. That's why in 50 over cricket also you're seeing many more 300 being scored or more than 300 being chased down as well. So वो भी एक पहलू. विकेटें इतनी अच्छी हैं, but it's all about longevity. जब 50 ओवर की क्रिकेट आती है ना, so as a batsman switch mode मैं बताता हूँ. If I was coaching, I've coached some teams as well. 5 गेंदबाज अगर आपको बॉलिंग कर रहे हैं ना, सिंपल मंत्र है, किसी ना किसी एक बॉलर का एक स्पेल आपको तंग करता है एज अ बैट्समैन. तो आपने सिर्फ सिंगल लेके दूसरी तरफ जाना है, स्कोरबोर्ड चलाते रहना है. 5 बॉलर वेट करो ना, बॉलिंग चेंज तो आने वाली है.
और आपको पता है कि 50 ओवर की क्रिकेट में एक स्पेल 3 ओवर का होगा, बीच में 2 ओवर का होगा, फिर एक और 2 ओवर का होगा, फिर एंड में 3 ओवर का होगा। तो वो एंड में कैलकुलेशन है ना, कौन सा बॉलर कब आपको तंग कर रहा है, इंतज़ार कर लीजिए। और आजकल तो आप कोई भी बैट्समैन है छक्के इतनी आसानी से मारते हैं, वो आप अगर 12 डॉट बॉल भी खेल जाते हैं तो अब उनकी कैलकुलेशन होती है कि भाई कभी भी वो 12 रन जो है ना, वो 12 डॉट बॉल कवर कर लूँगा, मेरे लिए तो 2 हिट है, बॉलर का वेट करना है। सो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, हाउ यू कैलकुलेट एंड यू नो थिंक अबाउट योर इनिंग्स इज वेल। खुज़ैमा की बात कर रहे थे, अभी डिसूज़ा लड़का जो है, मोहम्मद वसीम की बात की। ये एक जो प्रोसेस है, अभी सिर्फ 3 साल में आप कहें कि एकदम से यूएई की टीम ऐसी बन जाएगी कि धमाका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो समय लगता है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से आपके कॉम्पिटिशन्स रहेंगे, वो धीरे धीरे उनका क्रिकेट का स्तर और बेहतर होता चला जाएगा। और फ़र्क देखिएगा, डिसूज़ा ILT20 के बाद या मोहम्मद वसीम माई एमिरेट्स के साथ समय बिताया उन्होंने, पोलार्ड के साथ, यहाँ पे जेसन रॉय के साथ डिसूज़ा बल्लेबाजी कर रहे हैं, टॉम कोल और कैटमोर। किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, वो बड़ी अच्छी सीख होती है। ड्रेसिंग रूम में मैच से पहले एक खिलाड़ी किस तरीके से अपने जोन में आता है, वो एक तैयारी होती है, विजुअलाइजेशन। तो कई बारी वो चीज़ें उस तरीके से वो प्लेयर्स को वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता नहीं है, लेकिन अब वो टेस्ट कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे को एक अच्छे बड़े मैच में जाके स्कोर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट ये आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। ये जो ILT20 का प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, ये एक अद्भुत अनुभव रहेगा जो यहाँ से युवा खिलाड़ी लेके जाएंगे ना, उनका स्तर अपने आप बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए।